Hello student, today I have come with new topic, that is DDL. In earlier video we have discussed about the database and database model, then after how many types of languages, DDL, DML, DCL, DQL, right? So today I will discuss about the DDL only, that is data definition language. In this particular data definition language we have three SQL statement, structure query language statement. With the help of these three statements, we will implement the data definition language here. Okay, so let's discuss one by one. So before that, whenever we apply any particular statement or command, we must know the syntax of that particular command. Any language, whether you are learning in Python, whether you are learning in Java, any language if you want to learn, you must know the statement of that particular syntax, right? So syntax, if you talk about the syntax of create, so create statement, syntax create table name, then after bracket we have to use parenthesis, and this is what column name, after that data type, this column name data type must be there, and after that the size of this particular field, the size also must be there. So number of column must be there, column list you can specify over here, and then after close the bracket and then semicolon must be there to be created. Okay, so table, if you want to create the table, you have to use create table command. With the help of this particular table you can create. Now next command is what? Alter command. With the help, alter command means what? If you want to change the existing table, right? If you want to change something, if you want to change the structure of the existing table, then we have to use alter command, right? Similarly, if you why we use create is basically create the structure of the table or create the structure of the database, then we have to use create command. Alter command means if you are having the existing table, if you want to make modification over there, if you want to changes over there, then we have to use alter. Suppose I want to add new field into that existing table, so I can use the alter command over there. Now next thing is that drop का मतलब क्या होता है? Drop is basically used to delete the structure of the table or delete the entire database. Okay, टेबल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर डेटाबेस को डिलीट करना है तो वी हैव टू यूज़ ड्रॉप कमांड. सो ड्रॉप अल्टर कमांड का क्या सिंटेक्स होता है? अल्टर टेबल नेम ऐड मीन्स इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू column, new fields into that existing table, then we have to specify. I have written here example, we'll discuss later on, right? So then after data type and size. Next thing is that drop. Third one is what? Drop command. Drop command is what? Drop command is used to delete the structure of the table. So drop table, and then after you have to specify the table name. So it is going to be delete the entire table structure, right? So these are the things which we have to cover in this particular DDL. Now next thing is that constraint. Constraint is what? Constraint is a condition or check applicable on a field or set of field. किसी एक field पे हम लगा सकते हैं इसको constraint को, या फिर number of field के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Constraint का मतलब रूल, हमें अगर रूल लगाना है तो हम रूल लगा सकते हैं. अब वो कंस्टेंट कितने तरह से हम लगा सकते हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्टेंट. फर्स्ट वन इज योर यूनिक कंस्टेंट, प्राइमरी की कंस्टेंट, डिफॉल्ट कंस्टेंट, चेक कंस्टेंट. दीज कंस्टेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, you are not able to write in examination. So today have chance you to learn all these particular constraint. Now let's see the example of all these things. Examples, if you want to create a table in the database, before that you have to ensure that database must be there, because database is what? Collection of table. Collection of table means बहुत सारे tables होंगे उसके अंदर. जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, if you want to make a software, so there must be some number of tables over there, and there must be some link over there. There are some constraint we have to use, referential, entity, domain, number of constraint we can apply over there.
and then after you are able to develop the software, complete software. Now come to the point. So if you want to make the create table, if you want to create the table, before that you have to ensure that database must be open. That means use, with the help of use command, use database. Suppose your database is what? SMS, school management system. So before that you have to use that database, use SMS. मतलब आपने क्या किया, उस database को open कर लिया. Then after you can create, जो भी आप database में एक्टिविटी करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? डेटाबेस के अंदर होगा. तो वो डेटाबेस के अंदर हम चाहते हैं स्टूडेंट नाम का टेबल को क्रिएट करना. सो हाउ वी कैन डू? विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल. आप यू कैन कंपेयर विद द सिंटेक्स. क्रिएट इज अ व्हाट? कमांड. टेबल इज अ कीवर्ड. क्रिएट इज अ कमांड. टेबल इज अ कीवर्ड. टेबल स्टूडेंट इज व्हाट? टेबल नेम, राइट? This is what? These are the fields and these are the data types, right? And these are the constraint. So first field is what? First field is student roll number. Student roll number क्या होता है? Integer होगा. Character type तो ले नहीं सकते. 1 2 3 4 होता है ना रोल नंबर. तो रोल नंबर हम क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे. नॉट नल का मतलब ये होता है कि उसमें हम ब्लैंक वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू स्पेसिफाई, दैट इज मैंडेट फील्ड. नॉट नल मतलब नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. नल वैल्यू का मतलब एम्प्टी, खाली स्पेस, खाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू हैव टू स्पेसिफाई सम वैल्यू. यूनिक कंस्टेंट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट कंस्टेंट ओवर हियर. यूनिक कंस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट वैल्यू. डुप्लीकेट वैल्यू जैसे रोल नंबर है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता. रोल नंबर मस्ट बी यूनिक, यूनिकली आइडेंटिफाई. यस, रोल नंबर क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स. हर रिकॉर्ड्स में अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसके अंदर रोल नंबर्स हैं, तो रोल नंबर्स क्या होता है? सब हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होता है. तो हमने यूनिक लिख दिया. यूनिक कंस्टेंट अगर लगा दिया तो इसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट नंबर को हम लोग स्पेसिफाई, दो कंस्टेंट लगाया हुआ है. एक तो है यहाँ पे नॉट नल और दूसरा कंस्टेंट है यूनिक. नॉट नल का मतलब होता है हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं कर सकते. दूसरा कंस्टेंट हमने लगाया यूनिक. यूनिक का मतलब होता है कि इसको डुप्लीकेट नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 लिखा, फिर दूसरे स्टूडेंट का भी 1 लिखा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्यों? क्योंकि ये यूनिक कंस्टेंट है. यूनिक कंस्टेंट अगर नहीं होता, हटा देंगे तो 1 को 2 बार हम एक्सेप्ट करा सकते थे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट एस नेम. एस नेम इज व्हाट? कैरेक्टर टाइप विच इज़ नॉट नल. नॉट नल मतलब हम इसको, ये भी हमारा मैंडेट फील्ड है, इसमें भी हमें स्पेसिफाई करना होगा. S class name integer varchar, and then after we have to close, and then after semicolon. We are following the syntax. Syntax we are following. This is the create part. Create, as well as I have discussed about the unique constant. I think you must understand about this particular concept. Second concept is what? Alter command. Alter command means if you want to change, if you want to modify the existing table structure, then we have to use alter command. Alter table, table name, alter table and table name, like that. Alter table, table name. I want to add telephone number into that particular field. आप देख रहे हैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर कहीं पे नहीं है, फील्ड है नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर ऐड करना. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं. वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, राइट? सो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड. अल्टर टेबल, टेबल नेम. यू कैन सी the syntax. Alter table, table name, and add, this is the new column which we want to add in, and data type of that particular column and the size of this particular data type. You can specify like that. Is that clear? Now next thing is that I'm going to explain the drop command. Drop command means if you want to delete the entire structure of the table, entire structure of the database, then we have to use this particular drop command. Drop table and table name. तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका कंप्लीट टेबल जो आपने बनाया हुआ था, जो डेटा आपने इंसर्ट किया था, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, राइट? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? प्राइमरी की. प्राइमरी की इज व्हाट? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज व्हाट? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि यूनिक में भी ऐसा ही था. यूनिक में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, तो प्राइमरी में भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है, यूनिक की के अंदर हम नॉट नल वैल्यू हो सकती है, राइट?
लेकिन इसके अंदर हमारी नल वैल्यू नहीं हो सकती. यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर, you have to specify the uniquely number, uniquely identify is recorded in the table. That is called primary key. How we will do that? With the help of this example, you can see this is the primary key. Primary key is a keyword through which we can assign any particular field as a primary key. Like here, create table name, S roll number integer, primary key. That means we are making the S roll number, student roll number as a primary key. मतलब ये क्या करेगा, ये प्राइमरी की का रोल प्ले करेगा. अगर हम इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, दिस सिंटेक्स अगर हमने क्रिएट किया और इसको रन किया तो क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा जो कोई स्टूडेंट नेम का होगा, जिसमें नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, 4 फील्ड्स होंगी, स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी. और स्टूडेंट रोल नंबर पे हमने कंस्टेंट लगा रखा है प्राइमरी की कंस्टेंट. प्राइमरी की कंस्टेंट मैंने लगा रखा है. उस कंस्टेंट के थ्रू क्या होगा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और इसमें नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड थिंग इज दैट डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट. डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट का मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग समथिंग दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली सेट. ऑटोमेटिकली सेट हो जाना, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी वैल्यू, सपोज आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द सिटी नंबर, सिटी नेम अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड दिल्ली अपने आप सेट हो जाएगा. आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मान लीजिए हमने दिल्ली का स्कूल है या दिल्ली का कॉलेज है, तो हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली सेट कर दिया. अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट की एंट्री करना है तो हमने क्या किया, वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, दिल्ली लेगा. हमने कुछ स्पेस अगर मैंने मान लो छोड़ दिया वहाँ पे स्पेस, उस पर्टिकुलर फील्ड पे जा करके हमने एम्प्टी छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली स्टोर कर लेगा डेटाबेस के अंदर. यस या नो? सॉरी. सो दिल्ली इज गोइंग टू बी स्टोर इन दैट पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, राइट. देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेक कंस्टेंट. चेक कंस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे हमने चेक लगाया. चेक क्या लगाया मैंने कि कोई यूज़र बाय मिस्टेक, यूज़र अगर मान लीजिए इनइंटेंशनली या इंटेंशनली गलती कर रहा है तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक कंस्टेंट. चेक का मतलब हमने एक रूल लगा दिया. वो रूल क्या है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चेक कीवर्ड. चेक कीवर्ड होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसका क्लास, जिस स्टूडेंट का क्लास 10 से अबव है या 10 से लेकर के 10 से अबव है, जैसे 10, 11, 12 का ही रिकॉर्ड एंट्री करना है मुझे. यूज़र अगर मान लीजिए 9 पुट करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने चेक लगा रखा है, हमने कंस्टेंट लगा रखा है, रूल लगा रखा है. अगर 8 रखता है, 8 इंटर करता है क्लास का नाम, स्टूडेंट क्लास नेम, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है. तो चेक का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे कंस्टेंट लगा रखा है कि अगर जो भी डेटा एंट्री होगी जो कि क्लास नेम का, वो मोर देन इक्वल टू 10 होगी. मतलब 10 रख सकते हैं और उससे ज़्यादा रख सकते हैं, 10, 12, ठीक है, 11, 12, ठीक है, लाइक दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्टेंट विच इज़ वेरी वेरी important to understand, because these are the concept generally came into the exam. ठीक है, you can see the sample paper, earlier papers, right? You can check all these concept is there. ठीक है, thank you so much, have a nice day. We'll discuss in next class, we'll discuss all about the next topic, that is DML part. We'll cover in next video. Okay, thank you so much, have a nice day.